تو آج ہمارے ساتھ مفتی سلطان رضا سیوانی ہیں اور ہم لوگ بات کریں گے جشن عید میلاد النبی کو لے کے۔ آپ بتا دیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ نکالتے ہیں تو اس میں مطلب ڈانس ٹائپ کا اس طرح کا دکھنے لگتا ہے، ڈی جے پہ زیادہ لوگ دور ہوتا ہے، کتنا صحیح ہے یہ؟ اعتراض تو ہر چیز پر ہے کہ یہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب خدا کا فضل اور اس کی رحمت کا نزول ہو تو تم اس پہ خوشیاں مناؤ، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے لیے مال جمع کرنے سے اسلام نے ایک دائرہ بنا دیا، کہا آپ اس دائرے کے اندر رہ کر آپ کوئی کام کر سکتے۔ جلوس کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعہ لوگوں کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا، چونکہ پورے ملک میں میرا آنا جانا ہے، پورے دن ڈی جے بجتا رہا، نوجوان جھنڈیاں لے کر کے جھومتے رہے، لیکن کوئی میسج اور پیغام ہم دنیا تک نہیں پہنچا پاتے۔ جو بھی یووا ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہ ذمہ داری محسوس کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں حضور نے جو پیغام پوری دنیا کو دیا، تو ہم سارا پیغام نہیں بلکہ ہم اس دن حضور کا ایک پیغام قوم تک پہنچائیں۔ پیغام کو عام کرنے کے لیے نعرے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت زیادہ ہلنے ڈولنے شور شرابہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک تختی لیں، ہے نا، کارڈ بورڈ لیں اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک پیغام لکھیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، لیکن حضور نے کہا کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہے، یہ دفنائی نہیں جائیں گی، جلائی نہیں جائیں گی، بلکہ یہ ڈولیوں میں سجائی جائیں گی۔ تو آپ ایک تختی لیں، یہ بھی ایک خوبصورت پیغام ہے، اور اس پہ بنا لیں اور آپ جلوس محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خاموشی کے ساتھ نکلے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچ جائے۔ بی اے بی کام بی ایس سی ایم اے ایم کام کریں وشو کی سب سے بڑی یونیورسٹی اگنو سے، سالو اسائنمنٹس اور گائیڈ بکس پراپت کریں۔ سمپرک کریں مہاکال کمپیوٹرز، ڈی اے وی پی جی کالج کے پاس، پنچ مندیرہ موڑ سے داہنے، سیوان۔ تو آج ہمارے ساتھ مفتی سلطان رضا سیوانی ہیں اور ہم لوگ بات کریں گے جشن عید میلاد النبی کو لے کے۔ آپ بتا دیں کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور 12 ربیع الاول یعنی 16 تاریخ کو، ستمبر کے مہینے میں، اسی مہینے میں 16 تاریخ کو جلوس بھی نکلتا ہے۔ بتا دیں کہ سیوان سہیت تمام بہار کے جتنے بھی ضلع ہیں یا پھر آس پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ دھوم دھام سے جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں۔ اور اسی پہ بات کریں گے سلطان رضا صاحب سے کہ آخر اس کو جو جلوس ہم لوگ نکالتے ہیں اس پہ تھوڑا سا یہ کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جلوس نکالتے ہیں تو اس میں مطلب ڈانس ٹائپ کا اس طرح کا دکھنے لگتا ہے، ڈی جے پہ زیادہ لوگ دور ہوتا ہے، کتنا صحیح ہے یہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو پورے عالم کے لوگوں کو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک مہینہ مبارک ہو، اور یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے روز پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں اہل عشق و محبت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، ہوتا ہے، اور لوگ جلوس نکالتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنم دن ہے۔ اور قرآن نے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلوس جو نکلتا ہے نہیں نکلنا چاہیے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے، اعتراض تو ہر چیز پر ہے کہ یہ نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر شخص کو یہ آزادی ہے اور وہ اپنی فکر کے حساب سے بات کرتا ہے۔ دلائل سب کے پاس ہیں۔ قرآن نے کہا کہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جب خدا کا فضل اور اس کی رحمت کا نزول ہو تو تم اس پہ خوشیاں مناؤ، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے لیے مال جمع کرنے سے بہتر ہے۔ لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ اسلام نے ایک دائرہ بنا دیا، کہا آپ اس دائرے کے اندر رہ کر آپ کوئی کام کر سکتے، تب جا کر کے آپ کے لیے
दुरुस्त है। जुलूस का असल पैगाम जी ये है कि हम उसके जरिया लोगों को बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने का जी। मकसद क्या, मकसद क्या था जी? या उन्होंने जो 63 साल जिंदगी गुजारी तो उनका क्या उद्देश्य रहा। बिल्कुल ठीक है, देखिए एतराज करने वाले बहुत कुछ एतराज करते हैं, तो हमें उनसे बहस नहीं है, लेकिन मैसेज और पैगाम से ही जाना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा कि लोग डीजे का इस्तेमाल आज करते हैं, ज्यादा जोर देते हैं कहीं युवा निकलना चाहिए क्योंकि जी। देखिए युवा ही है, जी वो समझते नहीं है, नौजवान है, जी जोश में होश खो देते हैं, जी जबकि इस्लाम होना है। हाँ बड़ा पाकीज़ा मजहब जी है। मैं भी देखता हूँ क्योंकि पूरे मुल्क में मेरा आना जाना है, पूरे दिन डीजे बजता रहा, नौजवान झंडियां लेकर के झूमते रहे, लेकिन कोई मैसेज और पैगाम हम दुनिया तक नहीं पहुंचा पाते हैं जी। तो इस्लाम में इसका कोई वजूद डीजे का जी और इस तरीके से झूमने का नहीं है, बल्कि सादगी के साथ, सलीके के साथ आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकालें जी और हर मुसलमान जो भी युवा है, नौजवान है, वो ये जिम्मेदारी महसूस कर ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी में हुजूर ने जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया, तो हम सारा पैगाम नहीं बल्कि हम उस दिन हुजूर का एक पैगाम कौम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल एक पैगाम, लोगों में उनके पैगाम को आम किया जाता है। पैगाम को आम बाकी किया, दिन तो लोग नहीं कर पा रहे हैं जी। तो उस दिन तो कम से कम किया जा सकता है जी। पैगाम को आम करने के लिए नारे की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा हिलने डोलने शोर शराबा की जरूरत नहीं है। आप एक तख्ती लें, है ना, कार्डबोर्ड लें और उस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक पैगाम लिखें। जी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, जी लेकिन हुजूर ने कहा कि बेटियां खुदा की रहमत है, जी। ये दफनाई नहीं जाएंगी, जलाई नहीं जाएंगी, बल्कि ये डोलियों में सजाई जाएंगी। तो आप एक तख्ती लें, ये भी एक खूबसूरत पैगाम है। और उस पे बना ले और आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खामोशी के साथ निकले ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। जी अभी आप देख रहे हैं औरतों के साथ इस्लाम में कितना भले समाज में कितना जुल्म हो रहा है। ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन औरतों के हवाले से है ना, जैसे मान लें कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हमने एक तख्ती बना ली। शराब पीना हराम है, हमने एक तख्ती बना ली। जहेज मांगना हराम है। अल हयाओ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। यानी सारी दुनिया की डिग्रियां हो और हया आपकी जिंदगी में नहीं हो तो ये कुछ नहीं है, ताकि जब आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकले तो कोई भी जिसकी भी नजर पड़े तो आपकी तख्ती पर पड़े तो पूछे तो भाई आप ये तख्तियां जो लेकर के चले हैं, कहा हाँ हम जिनके जन्मदिन की याद में आज जुलूस निकाले हैं, ये सारा पैगाम उन्हीं का दिया। बिल्कुल, यानी जो लोग शोर शराबा के साथ जी। डीजे के साथ जी। वो मैसेज नहीं पहुंचा पाते हैं, वो मैसेज शालीनता के साथ भी पहुंचाया जाता है। शालीनता और इत्मीनान बात है कि आप शालीनता के साथ हाथों में कार्डबोर्ड लीजिए, तख्ती लीजिए और लेके जब निकलिएगा और चुपचाप से चलिएगा तो कहीं ना कहीं जो दूसरे समाज के लोग हैं जी वो भी देखेंगे, जी। उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और उनको क्या है कि असल इस्लाम जानेंगे कि असल इस्लाम ये है जी। ये नहीं तो हम लोग देखते हैं डीजे में लोग ये कर रहे हैं, नाच रहे गा रहे हैं, वो इस्लाम नहीं। इस्लाम ये है जो जीने की तरीका भी बता रहा है कि कैसे जिंदगी गुजारा जाए, क्या ये सब चीज। मान ले रहे हैं कि आप एक पैगाम देके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजें बहुत पसंद है, भूखों को खाना खिलाना और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना, जो सलाम जिसे कहा जाता है, सलाम के जिसे मिलो उसे सलाम करो और भूखों को खाना खिलाओ। तो आप समाज में इस तरह के मैसेज दे सकते हैं। अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है तो आप एक पैगाम और भी है, चूंकि हमारा अकीदा है कि सारी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनी है। आला हजरत अजीमुल बरकत का एक शेर है, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत इमाम हुसैन ने एक रोज हजरत अली से पूछा कि मेरे नाना जान की सीरत क्या है,
तो मदारिजुन नबुवा शरीफ में अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देहलवी ने लिखा जी कि हजरत अली मुस्कुराए और कहा कि आपके नाना जान जब मजलिस में बातें होती तो कहते कि मैं जो तुम तक पहुंचा रहा हूं इसे सुनो और जो नहीं आए हैं उन तक पहुंचा दो और उनकी हाजत पूरी करो, और अगर कोई दूसरा मुझे तक हाजत के लिए आना चाहता है, अपनी जरूरत पेश करना चाहता, नहीं पहुंच पाता लेकिन तुम तक पहुंच रहा है तो और मुझ तक, तो उसको मुझ तक पहुंचाओ ताकि मैं उसकी जरूरत पूरी करूं, मैं उसकी जरूरत पूरी करूं। जी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी सुन्नत है इयादत करना, मरीजों की इयादत, खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल करना, पीने से पहले पड़ोसियों का ख्याल करना। इसमें जात और मज़हब की बात नहीं है, बल्कि हुजूर ने फरमाया भूखा है तो उसको खाना खिलाना है और पड़ोसी है तो उसको कपड़ा पहनाना है। अब आप नौजवान हैं, अल्लाह ने आपको बहुत मालो ज़र से नवाजा है, तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबादी देने के लिए आप एक जरिया ये भी अपना सकते हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में गरीब लोग हैं तो हमने राशन का इंतजाम किया और चुपके से उसमें लिखा आमदे मुस्तफ़ा मुबारक हो, और ले जाकर उनके घर चुपके से पहुंचा दिया कि ये सरकार की आमद की खुशी में हमने हुजूर की मोहब्बत में आप तक। अच्छा, जरूरी नहीं वो किस जाति से है, नहीं, ये नहीं, आपके पड़ोसी है तो आप उनकी मदद करें। किसी अस्पताल में चले गए, किसी अस्पताल में चले गए और साहब हमने देख लिया कि गरीब हैं, मरीज हैं, दवाइयों की ज़रूरत है, तो हुजूर के नाम पे उन्हें दवाइयाँ तकसीम कर दी, गरीबों में कपड़े तकसीम कर दिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी हम इस तरीके से भी मना सकते हैं, बल्कि हुजूर की विलादत की खुशी असल यही है कि हम दूसरों तक खुशियाँ पहुँचाएं। विलादत की खुशी का शानदार तरीका बता रहे हैं, लेकिन जो युवा है थोड़ा सा उनको भी एक पैगाम आप दीजिए, उनको बताइए, जो देख रहे हैं उनको बताइए। क्या मेरी तो गुजारिश है अपने मुस्लिम नौजवानों से खास कर कि देखें आप संजीदगी को अख्तियार करें। इस्लाम बड़ा संजीदा मजहब, इस्लाम हू हा और हल्ला हंगामा वाले मजहब का नाम नहीं है। नारा आप लगाएं मगर साइस्तगी के साथ, साइस्तगी के साथ, बड़े जज्बाती होकर के नहीं, वरना ऐसा नहीं हो कि दिन भर हमारे युवा मोटरसाइकिल से पूरे शहर में घूमते रह गए, गली देहात में घूमते रह गए, नारा लगाते रह गए और किसी को पता ही नहीं चला कि जिस नबी के सदके में दिन भर हमारे नौजवान घूमे, जिस नबी की मोहब्बत में, उनका कोई पैगाम हम अपनी जिंदगी में उतार सके या न दूसरों तक उतार सके। और किसी को फिर पता भी नहीं चल पाए, जो दूसरे कौम के लोग हैं उनको पता भी नहीं चल पाएगा क्या हुआ ये। देखिए एक पैगाम तो और है, मतलब पूरी मुस्लिम कमेटी के नाम कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है, पूरा शहर सीवान सज संवर जाता है ना, तो पूरी लाइटें लगती हैं, रोशनी, तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि क्यों भाई लाइट लगती है, एक एक गली सज जाती है, हर गली मनोवर है, रोशन है, सरकार की आमद है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे है ना, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी की किताब है शवाहिदुन नबुवा, अल्लामा अब्दुल मुहद्दिस देहलवी किताब है सितारे तारे जमी पे उतर आए थे। लेकिन इस मौजूए बहस नहीं बनाना है, बताने का मेरा मकसद ये है कि मोहल्ला तो सज गया, दरो दीवार तो चमक गए, लेकिन हुजूर जो तशरीफ ले आए वो हमारी जिंदगी में अपने किरदार के नूर को उतारने के लिए आए। तो हमने अपनी जिंदगी में नबी की सीरत के नूर को कितना उतारा, हमारी गलियां सज गई, काश वैसे ही हमारी जिंदगी हुजूर की सुन्नतों से सज जाती तो हमारी दुनिया भी संवर जाती और हमारी आखिरत भी संवर जाती। ये बड़ी बात है। हम तो अपने मोहल्ले को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिंदगी को नबी की सीरत और किरदार से हम अपनी जिंदगी को सजा लें। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इस्लाम में जो मैसेज दिया जाता है जिस तरह का, आजकल आप देख रहे हैं कि हर तरह से सोशल मीडिया हो या फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल, कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कैसे इस्लाम को बदनाम किया जाए। यानी
जो आपके विरोधी है वो तो चाहते हैं कि कैसे इस कौम को बदनाम कर दिया जाए, दिन रात लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप अपने चाहेंगे तो अपने बुद्धि और विवेक से बेहतर कर सकते हो। खास करके इन मौकों पे, यानी जब आप 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहे हैं तो ऐसे मौकों पे एक ऐसा पैगाम दे सकते हैं लोगों को, ताकि जो लोग हैं आपके आसपास के लोग, जो दूसरे कौम के लोग हैं, उनको कम से कम ये पता चले नहीं जो इस्लाम हम टीवी पे देख रहे हैं या फिर न्यूज चैनल पे देख रहे हैं वो इस्लाम असल जिंदगी में नहीं है। जैसे इन्होंने बताया कि पड़ोसी को ले जाकर राशन दे दीजिए उस मौके पे, मुबारकबादी देते हुए, क्या या ईद, जैसे ईद का भी त्यौहार आता है, बकरीद का भी त्यौहार आता है, ऐसे त्योहारों के तो ये एक अलग मैसेज आएगा, एक अलग पैगाम जाएगा। तब लोग जो आपके अड़ोसी पड़ोसी ये लोग सोचेंगे नहीं ये वाकई में इस्लाम तो ये है जो हम देख रहे हैं। क्या मान लीजिए पड़ोसी के नाते है और हमने किसी को मदद किया, सही बात, इतना तो वो सोचेंगे नहीं भाई हमारे पड़ोसी है, ये मुस्लिम है, लेकिन हमेशा खड़े रहते हैं जी। और जब कोई मेरे बारे में बोलेगा, गलत बोलेगा तो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु की सीरत आप पढ़े चुके, हुजूर सल्लल्लाहु की 63 साल जिंदगी रही, 40 साल हुजूर ने इस्लाम का ऐलान नहीं किया और 23 साल इस्लाम की तबलीग की और पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। हुजूर सल्लल्लाहु ने की जो 40 साल जिंदगी पढ़ेंगे तो चूंकि अरब पूरी दुनिया के बीचों बीच में है, तो पूरी दुनिया के ताजिर तिजारत के लिए और बिजनेस पॉइंट उस वक्त अरब की सरजमी थी और लोग अरब महासागर में पूरी दुनिया से समुद्री रास्ते से तिजारत के लिए जाते थे। वहां पे नौजवानों का माहौल ये था कि जो ताजिर आए उनके माल को लूट लिया, उनकी बहू बेटियों की इज्जत पे धावा बोल दिया। तो हुजूर सल्लल्लाहु ने नौजवानों की एक कमेटी बनाई और कहा कि देखो पूरी दुनिया में अरब के नौजवानों के ताल्लुक से गलत मैसेज जा रहा है, तो हम एक तंजीम बनाएंगे और इन साल तिजारती मेला में जितने लोग आएंगे हम उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करेंगे। सब ने काबे में जाकर तलवार लेकर कसम उठाई। वो नौजवान जो बिगड़े हुए माहौल में थे, माल लूट लेते थे, हुजूर सल्लल्लाहु ने जब ऐलान कराया कि अरब के लोगों खबरदार मेहनत करो और हमारा साथ दो, कोई किसी के माल को लूट नहीं सकता वरना उसकी खैर नहीं है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। काफिला उतरा ताजिरों का, तो ये जो नौजवानों की टोली जो सरकार ने तैयार की थी, इन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, दुकान लगवाना, दिन भर वो बिजनेस करते, रात को थक हार कर सो जाते, तो पूरी रात उनकी रखवाली करते, उनकी बहू बेटियों की इज्जत की। तो अरब का एक अय्याश किस्म का नौजवान शख्स था, तो उसने किसी कबीले की एक बच्ची को उठा लिया। तो वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, अपने कबीले के लोगों से कहा, तो उन लोगों ने एक अरबी दोस्त से कहा, तो उसने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के करीब होंगे, उनसे चलकर कहो। लोग आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो नौजवानों को जमा किया और जा करके उसके घर का मुहासरा किया। देखिए जिन लोगों ने बेटी को अगवा किया वो भी मुसलमान नहीं थे और जिनकी बेटी अगवा हुई थी वो भी मुसलमान नहीं थे और अभी इस्लाम की कोई बात नहीं थी। हुजूर अपने किरदार से इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, अभी ऐलान भी नहीं किया था, नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान भी नहीं किया था। सरकार तशरीफ ले गए और जाने के बाद उसके घर का मुहासरा घेराव कर लिया, कहा फला इब्ने फला उखरुज, निकलो और तुमने फला इसकी बेटी का अगवा किया है, फौरन इसे वापिस करो। उसने कहा कि अरे आप तो मेरे कबीले के हैं, मेरे मुल्क के हैं और आप उसका साथ दे रहे हैं। तो हुजूर ने कहा खबरदार, गलत काम और मासियत में कबीला खानदान नहीं देखा जाएगा, बल्कि जो मजलूम होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। बताइए, खड़े होंगे। फिर वो मजबूर होकर उसकी बेटी को उसने वापिस किया और इज्जत आबरू के साथ बेटी आई। अब वो शख्स जब गया तो जाने कितना अच्छा मैसेज गया। अब जब वो गया तो उसके कबीले के, तुम्हारी बेटी को किसने छुड़ाया? कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसने कहा कि हमने बहुत दुनिया में तिजारत के लिए मैं बहुत जगह गया, बहुत इंसान देखे, मगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से ज्यादा अच्छा इखलाक और किरदार और बहादुर इंसान नहीं देखा। उस साल ताजिरों को बहुत मुनाफा हुआ, तो ताजिरों ने एक मीटिंग की और सबने कहा कि हमने तो इंसान बहुत देखे नौजवान, लेकिन इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमील, इतना अच्छा इखलाक वाला नौजवान नहीं देखा। तो ताजिरों ने मीटिंग की कि इन साल जो हम लोगों का इतना मुनाफा हुआ, तो हम क्यों नहीं इन नौजवानों को इतना माल दे दें ताकि ये नौजवान भी अपनी जिंदगी गुजारे और फिर जब हम आए यहाँ पे तिजारत के लिए तो हमारी ये मदद करें।
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन नौजवानों की टोली को बनाया था, ताजिरों ने इतना इनाम दिया कि जो नौजवान माल लूट कर साल भर घर नहीं चला पाते थे, वो सब के सब अमीर हो गए और बहुत बड़े ताजिर और खुद बिजनेसमैन हो गए। और जब वहां से पूरी दुनिया में लोग गए ताजिर, तो सबकी जबान पर एक ही नाम था कि अरब की सरजमी पर पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा नेक और कामयाब है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है। और उस वक्त से कोई ताजिर आता नेकी और अखलाक का सिला वहाँ कितना बढ़िया मिला कि जो लोग मतलब लूटते थे तो एक अलग पैगाम जाता था कि लुटेरे लोग हैं, जी, लूट लेते हैं, या फिर लोग डरते होंगे उनसे। जी जी जी। लेकिन देखिए थोड़ा सा नेकी उन्होंने और थोड़ा सा अखलाक दिखाया, जी, तो आप बोल रहे हैं जैसा कि सारे लोग अमीर हो गए। हाँ। ये कितनी अच्छी बात है। ये तो आज भी लोग सोचना मेहनत का एक जज्बा भी पैदा हुआ अरब की सरजमी पर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत के दुनिया से और भी लोग फिर आने लगे धीरे धीरे वहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम की तबलीग हुई और जो भी मामलात हुए। तो नौजवानों से मेरी खासकर गुजारिश है कि हम उस दिन कोई ऐसा किरदार न दिखाए जिससे इस्लाम पे कोई उंगली उठाए, बदनामी हो, इस्लाम की बदनामी हो। इस्लाम इस तरह के हल्ले हंगामा सुर, इस्लाम पैगाम मोहब्बत देता है। इस्लाम चूंकि सच्चाई वाला मजहब है, तो हर नौजवान ये बीरा उठा, इस्लाम में जना हराम है, इस्लाम में चोरी हराम है, इस्लाम में सूद हराम है, इस्लाम में रिश्वत हराम है, इस्लाम में आप किसी की बुराई नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरीके का मैसेज से लोगों का दिल जीता जा सकता है। आप लोग बराबर एक कहानी सुनाते हैं, वो जो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी उसका, जी, उसकी इयादत की। और खुद हजरत बेलाल मुल्क हबश के रहने वाले थे, बिकते बिकाते चले आए, तो सरकार ने उनकी चक्की भी चलाई है। ये सारे वाकयात किताबों में मौजूद है। तो इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक से फैला। आज वो हमारा इखलाक दिखाने की जरूरत दिखना चाहिए। तो जो हम लोग जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निकाले, उम्दा लिबास, उम्दा खुशबू सब इस्तेमाल करें, लेकिन हाथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम लेकर के चले, नारा भी हो और एक आपके तरफ से पूरी दुनिया को मैसेज और पैगाम भी हो। आप उसे सोशल मीडिया के जरिया, है ना, आप उस पैगाम को बिल्कुल देखा जाता है कि जो जुलूस में शामिल होते हैं उनको कोई मिठाई बांट रहा है, कोई पानी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। अच्छी बात है। बांटने के साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी, एक अच्छा पैगाम भी बांटने की, एक पैगाम बांट जी, साथ साथ एक अच्छा पैगाम भी लोगों को दी जाए। तो बिल्कुल हमारे साथ आपको बता दें कि मुफ्ती साहब ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर के मुल्कों में भी लगातार जाते रहते हैं और बता दें कि काफी व्यस्त रहते हैं। बावजूद इसके आज इन्होंने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम। और आगे से भी हम चाहेंगे कि लगातार इस तरह का कोई भी मामला हो उस पर हम लोग लगातार लोगों से बातचीत करते रहे, ताकि इस तरह के कुछ लोगों को और भी ज्यादा जानकारी होते रहे। जरूर। बहुत शुक्रिया आपका।